Yes, students, today we are going to pick the topic controlling process. Controlling process. If we talk about the first step of this process, that is same as of planning. Because unless and until you will not be setting the objectives, how you can compare your actual performance with the standard set. So यहाँ पे पहला वो क्या बोलेगा? Not objectives, he is calling it. Rather, he is calling it setting performance standards. And standards are nothing else, that is saying goals, objectives, aims, etc. Whatever you want your employees to achieve, that is what standards. ठीक है? So let me tell you. First step, setting performance standards. So firstly, you need to tell your each and every employee that what are the standards. Like अगर मैं product की quality की बात करूं तो what type of quality you want, that is standard. ठीक है. और standard क्या हो सकता है? For the employees to reach on time in the company campus, that is also the standard time. Then their production efficiency, that is the time you will give to them to produce a single unit. तो दिन में वो कितने यूनिट बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बीइंग टोल्ड टू देम. सो डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट क्या रहते हैं, स्टैंडर्ड्स रहते हैं, बट यू जस्ट हैव टू मेक अ क्लैरिटी to each and every employee of your concern that they should firstly know the standards, then only they will be trying their best to achieve that, right? And the top management will just be dictating that standards to the middle management, and middle management ultimately intimate it to the lower level management, to the supervisors, etc., because they are the authorities who are actually concerned with the works to be achieved or with the targets to be achieved. They are the authorities, supervisors I mean to say. They are the actual personalities, or you can say authorities, who have to get the work done from the workers. They are actually dealing with the workers, so they should know what the standards are being set by the company's board of directors. Whatever he is writing about standards, let me tell you, the first step in controlling process is setting up of the standards. जैसे planning का पहला step होता था setting of the goals, ठीक है, इसका पहला step है standards को fix करना. अब standards का meaning आता है भाई 1 mark में. These are the criteria against which actual performance would be measured. ये वो क्राइटेरिया है, ये वो पैरामीटर है जिसके अगेंस्ट हम लोग उन बंदों की एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने मान लो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं किया, फिर मैं कंट्रोल क्या करूँ? तो फर्स्टली यू हैव टू फिक्स द स्टैंडर्ड. जैसे मारुति उद्योग के केस में एक पर्टिकुलर मॉडल की गाड़ियां साल में 1000 बनेंगी, दैट इज स्टैंडर्ड्स. ठीक है, और एंड में जब हम लोगों ने साल बीता, हमने देखा 960 गाड़ियां ही बनी. So in that case we are deviating from our standard. It means कि वो एक क्राइटेरिया है, वो एक पैरामीटर है जिसके अगेंस्ट आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं. 10 जैसे, और मैं इसको ज्यादा एलेबोरेट करूं, यू कैन सी योर रिपोर्ट कार्ड जहां पे उन्होंने लिखा होता है पासिंग मार्क्स और एक मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, और फिर मार्क्स ऑब्टेन रहता है. ठीक है, तो पासिंग मार्क्स के साथ कंपेयर करके हम ये देखते हैं बच्चा फेल है कि पास है. Getting it? For example, in all subjects 33 is the passing criteria. That is the criteria. ठीक है, and if the student is getting 40, it means he or she is passed. If the student is getting 28, it means he or she is failed. So that is the criteria basically against which you just measure the actual performance of that person. So I related it with your mark sheet. आप बोर्ड का भी अपना 10th का सर्टिफिकेट देखेंगे, you can see that. Standards किन फॉर्म्स में सेट हो सकते हैं? Standards can be set in both quantitative as well as qualitative. Like किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, कॉस्ट टू बी इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट. एक यूनिट के बनाने के ऊपर आपको कितनी कॉस्ट खर्च करनी है, दैट इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. मींस मेरे, फॉर एग्जांपल माय कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बॉल्स, स्मॉल बॉल्स. ठीक है, स्पॉन्जी बॉल्स बना रही है कंपनी, या कोक की बॉल बना रही है, तो एक बॉल को बनाने की कितनी कॉस्ट है, वो स्टैंडर्ड है ना. फिर आप मेजर करोगे कि हमारी उतनी ही कॉस्ट लगी है, उससे एक्सीड तो नहीं होगी. बिकॉज अनलेस एंड अंटिल योर कंपनी इज नॉट नोइंग द कॉस्ट ऑफ दैट बॉल, हाउ योर कंपनी कैन डिसाइड द सेलिंग प्राइस. In order to fix the selling price of anything being produced by your company, you need the cost to be incurred on that. Then only you will be in a position to fix the appropriate selling price of your product. So जब आप cost set करते हो तो वो भी आपका क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है. आगे मैंने बता ही दिया, टाइम टू बी स्पेंट इन परफॉर्मिंग अ टास्क. दिन में कितने दिन मेरा एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, 6 to 7 आवर्स उसका टाइम होगा, जिसमें 1 आवर की ब्रेक रहेगी, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड वी फिक्स. क्वालिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड कैसे हो सकते हैं, इंप्रूविंग द गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज.
when you inspire your workers, when you counsel them, that is what qualitative standard means. मेरे employees की जो पॉजिटिविटी का लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने पे बढ़े, उनका मोटिवेशन का लेवल बढ़े, these are the qualitative standards. अगले पेज पे टेबल है, इस टेबल में से क्वेश्चन बनता है, स्टैंडर्ड्स देखना जरा. अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी को बढ़ाना उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है. अगर मैं बात मार्केटिंग की करूं तो मार्केटिंग इज ऑलवेज अ रिलेटिव एडवर्टाइजमेंट एंड सेल, राइट. तो सेल वॉल्यूम को बढ़ाना उसका स्टैंडर्ड है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एचआरएम, ये हमेशा ये चाहेंगे मैनेजमेंट का अच्छा रिलेशन रहे लेबर के साथ, लेबर कभी स्ट्राइक पे ना जाए. तो गुड लेबर रिलेशन इज देयर मेन टारगेट, दैट इज स्टैंडर्ड. फाइनेंस और अकाउंटिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल रखना, मीन्स जितनी जरूरत है, ये बजट वगैरह बनाता है ना ये डिपार्टमेंट, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या रखेगा, कंट्रोल. आगे प्रोडक्शन में क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, वो भी तो स्टैंडर्ड हो सकता है. ये थोड़ा ना धड़ाधड़ सामान बनाए जा रहे हो, टारगेट था 500 यूनिट साल में बनाना, आपने 1000 बना दिया लेकिन क्वालिटी को इग्नोर ही कर दिया. तो क्वांटिटी के साथ साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्वालिटी भी स्टैंडर्ड रखना है. मार्केटिंग, सिर्फ सेल नहीं बढ़ाना, सेल करने के ऊपर खर्चा कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, सेल्समैन की कमीशन कितनी है, सेल्स पर्सोनल की सैलरी कितनी है, तो सेल्स एक्सपेंस पे भी कंट्रोल रखना, दैट कैन आल्सो बी द स्टैंडर्ड. लेबर टर्नओवर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर टर्नओवर, द फ्रीक्वेंसी विद व्हिच योर ओल्ड एम्प्लॉयज लीव योर कंसर्न. कितनी जल्दी जल्दी आपका कोई पुराना एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के जाता है, दैट यू हैव टू रिड्यूस. भाई इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, लेबर टर्नओवर हमेशा कम होनी चाहिए. ये नहीं है कि 2 महीने पहले आपने 10 बंदों की इंटरव्यू लेके बहुत टाइट सा इंटरव्यू कंडक्ट करके आपने उन्हें अपॉइंट किया था, एंड आफ्टर 2 मंथ्स दे आर जस्ट प्लानिंग टू लीव. ठीक है, वो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिमांड करे, इट मींस कि दे मे नॉट बी हैप्पी विद योर वर्क कल्चर. तो अगर आपके एम्प्लॉइज बहुत जल्दी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज द इंक्रीज लेबर टर्नओवर. इसका स्टैंडर्ड हमेशा लो होना चाहिए, लेबर टर्नओवर को आपने हमेशा रिड्यूस करना है. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एचआरएम. ह्यूमन रिसोर्स का जो मेरा हेड है वो इसको मेंटेन करेगा. देन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इन्वेंट्रीज जरूरत से ज्यादा नहीं रखना स्टॉक अपने पास, कभी भी आउट ऑफ डेट आउट ऑफ ट्रेंड हो गया तो आपके लिए लॉस हो जाएगा. सो दिस आल्सो टू बी कंट्रोल्ड. प्रोडक्शन का कॉस्ट तो होता ही है स्टैंडर्ड, ठीक. मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड रहता है. देन यस, अगर लेबर टर्नओवर एचआरएम का फोकस होना चाहिए तो लेबर एब्सेंटिज्म भी होना चाहिए, मींस आपके कम एम्प्लॉय छुट्टी करे, ठीक है. आप रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट बनाओ कि उन्हें छुट्टी का मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक है. उन्हें बता दो कि आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, आपको पेनाल्टीज एटसेट्रा लगेगा. सो लेबर एब्सेंटिज्म पे भी कंट्रोल होना चाहिए. फ्लो ऑफ कैपिटल, ये किसका फंक्शन है, फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल हो जाए चाहे फिक्स कैपिटल हो जाए, ये किसका स्टैंडर्ड रहेगा, हमारे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. सो लाइक दैट वे ही हैज एलैबोरेटेड. फर्दर ही हैज गिवन यू द एग्जांपल सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में. जब फुल फ्लेज प्रोसीजर आएगा आपको इतने बड़े पैराग्राफ में मेंशन नहीं करना, और बहुत कम बार है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा वो पूछे. 1-2 स्टेप वो खुद केस स्टडी में बनाए रखेगा और आपसे पूछेगा नेक्स्ट वाले 2 कुछ बताओ, या जो पैराग्राफ में स्टेप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो. So you need to read the explanation word to word so that you can learn the keywords and you will be able to identify that particular steps with the help of keyword only. Like whenever we are talking about a criteria against which the actual performance is to be measured, means वो बात standards की कर रहा है. और this can be both in quantitative and qualitative. Again वो किसकी बात कर रहा है, standards की तो बात कर रहा है. So these are the keywords which will help you to identify this particular step. Whatever example he is giving, we need to read, क्योंकि इसी example के ऊपर बेस करके वो कोई case study frame कर सकता है. Let's see. At the time of setting standards, a manager should try to set standards in precise quantity. Precise का मतलब क्या? It should be understood by others also. ये नहीं है कि मैनेजमेंट ने बड़े वेग से स्टैंडर्ड बना दिए हैं और अनअचीवेबल, अचीव ही नहीं हुए, ठीक है. बहुत हाई स्टैंडर्ड भी नहीं फिक्स करने, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपने उसे डिक्टेट करना है, ट्रांसलेट करना है टू द नेक्स्ट लेवल्स, सो दैट everyone of your organization can get what actually the management wants from them. This is performance based. Let's see the example. For example, reduction of defects from 10 in every 1000 pieces produced to 5 in every 1000 pieces produced by the end of the quarter. It is obvious whenever you produce on a very large scale, तो बीच में कुछ defective piece बन जाते हैं, ठीक है. पिछले सालों में या पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, तो जब मैं 1000 पीस प्रोड्यूस करती थी तो हर 1000 पीसेस के पीछे 10 पीसेस खराब बनते थे. अब हमारा अगले क्वार्टर का ये स्टैंडर्ड है कि हम डिफेक्टिव पीसेस का नंबर कम करना चाहते हैं. मींस हर 1000 के पीछे सिर्फ हमारे 5 ही डिफेक्टिव होने चाहिए पीसेस. मींस यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोडक्शन पर्सोना.
आपने प्रोडक्शन पे काम करने वाले अपने एम्प्लॉयज की एफिशिएंसीज को बढ़ाना है, आपने उनके ऊपर टाइट कंट्रोल रखना है, आपने उन्हें बोलना है कि कम से कम वेस्टेज होनी चाहिए, कम से कम डिफेक्ट निकलना चाहिए. So this is the standard you are fixing for the coming quarter. However, whenever qualitative standards are set, an effort must be made to define them in a manner that would make their measurement easier. कहता है क्वांटिटेटिव को मेजर करना हमारे लिए बहुत बार आसान रहता है, लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जब आप फिक्स करते हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेजर देम. सो दैट्स व्हाई क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स जब फिक्स करेंगे तो कैसे होने चाहिए, लाइक इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट इज अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड. मींस मेरा कोई भी कस्टमर जो मेरे पास आए, he should not feel dissatisfied with my services. So whatever services, whatever product we are selling to him or her, he should be feeling fully satisfied after consuming that product or after availing our services. तो customer satisfaction को बढ़ाना can be your qualitative standard. जैसे उसने बड़ी अच्छी example दी है, to reduce the waiting time when you visit to a bank. ठीक है, आपको टोकन मिल रहा है, काउंटर वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, या आप किसी ईटरी या फूड कॉर्नर पे जाते हैं तो वेटिंग टाइम वहां पे कम लगता है. ठीक है, आपको बहुत कम टाइम के लिए वेट करना पड़ता है. इट मींस कि यू विल फील सेटिस्फाइड कि यस, इसकी सर्विस बड़ी फास्ट है. तो इस तरह से आप क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं. बट स्टैंडर्ड शुड नॉट बी स्टैटिक फॉर एवर. Standards should be flexible enough, so whenever need arises, you should be in a position to change the standards. So this was the elaborated meaning of your first step of controlling process, that is setting of performance standards. Now come to the next, measurement of actual performance. What actually your workers are now doing? आपने 3 महीने पहले क्वार्टर के बिगिनिंग में उन्हें क्या बता दिया था कि दिस वी वांट फ्रॉम यू टू अचीव. ठीक है, ये हम चाहते हैं कि आप अचीव करो. जैसे ही 3 महीने बीतने वाले होंगे, 2-3 दिन पहले यू विल बी आस्किंग फ्रॉम देयर हेड्स कि इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करवाओ. दैट इज व्हाट एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस. वट एवर दे हैव अचीव, हम लोगों ने उसे क्या करना है, मेजर करना है. ठीक, अब एक्चुअल मेजरमेंट का उसने क्या लिखा है मीनिंग, वो जरा देखो. Once the performance standards are set, the next step is measurement of the actual performance. Actual performance should be measured in an objective and reliable way. मतलब यहाँ पे कोई भी biasness नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई favor नहीं होनी चाहिए. Whatever they actually did, only that you have to record in your register, etc. There are several techniques. अब measurement कैसे करेंगे, ये statistical techniques हैं. पहला, personal observation. उनके workplace पे जाओ और check करो वो काम कैसे कर रहे हैं. You can supervise them. That is what पर्सनल ऑब्जर्वेशन. सिंपल चेकिंग, सरप्राइजिंगली राउंड ले लो. अगर मान लो अपने वर्कर्स की जो उन्होंने सामान बनाया उसकी क्वालिटी चेक करनी है तो क्वालिटी इंस्पेक्टर से पूछ लो, अब ज्यादा डिफेक्ट तो नहीं निकलता, ये काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, हमारा ज्यादा सामान वेस्ट तो नहीं हो रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट इज सिंपल चेकिंग. देन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. डिपार्टमेंटल हेड्स को बोल दो कि अपने सारे एम्प्लॉयज की हमें रिपोर्ट बना के भेजो, तो ही विल बी रैंकिंग देम ना. ठीक है, उनको रैंक्स देगा या उनको ग्रेड देगा या उनको मार्क्स देगा. तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनवा के भी आप उनकी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सो इट शुड बी इन अ कंपैरेबल फॉर्म, ताकि ये जो रिपोर्ट्स हैं या उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हुई है, इसको एक अच्छे ढंग से आपने प्रेजेंट करना है ताकि हमारे टॉप मैनेजमेंट को उसे समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए. सो इट इज जनरली बीइंग डन व्हेन दैट वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड. परफॉर्मेंस को कब मेजर करेंगे, जब एक्चुअली टास्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. टर्न द नेक्स्ट पेज. Measurement of performance of an employee may require preparation of performance report by his superior. ये point आता है. When the superior is making the performance report of the employee, which step of controlling process he is adopting? Performance report की preparation कौन सा step है? That is measurement of actual performance. ठीक है, वैसे तो performance report का ही हो गया. या whenever he is reporting to the senior about the performance of his employees, अपने employees की performance के बारे में जब वो अपने सीनियर को बता रहा है तो भी वो कौन सा स्टेप कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व वो सारा आपका अकाउंट्स का है. डिफरेंट रेशियोज निकाल के आप कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं. अगर मान लो हमारा प्रॉफिट पहले सालों के कंपैरिजन में कम आ रहा है तो यू कैन आस्क योर एम्प्लॉइज एटसेट्रा, अकॉर्डिंगली यू विल बी टेकिंग द करेक्टिव स्टेप्स एटसेट्रा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी कम हो रही है, इट मींस कि हमारा सामान नहीं बिक रहा. जीपी रेशियो पहले से कम हो रही है, इट मींस कि हमारी सेल कम हो रही है या खर्चे बढ़ रहे हैं. सो लाइक दैट वे यू विल बी कमिंग टू द कंक्लूजन, बट दैट ओनली यू विल कम टू नो व्हेन यू एक्चुअली मेजर इट. मान लो आप अपनी कंपनी की रेशियो से नहीं निकालते, कैन यू कम टू नो कि प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है?
ROI नहीं निकाल रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल रहे, हाउ कैन यू कम टू नो कि बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? सो दिस ऑल इज बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन यू जस्ट वांट टू सी योर ओन कंडीशंस कंपेयरिंग विद द लास्ट ईयर, पिछले सालों के कंपैरिजन में आपकी कंपनी कहां पे स्टैंड कर रही है, दैट ओनली यू कैन कम टू नो विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट? नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई, आपने उस एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ क्या करना है, कंपेयर। तो अगले स्टेप का नाम ही यही है, कंपैरिजन या कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। हमने अपने एम्प्लॉइज को क्या बोला था करने को और उन्होंने एक्चुअली क्या किया। यहां पे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज मोर एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस, इट मींस कि there is negative deviation. You need to worry, you need to take the corrective steps in the coming time. But if reverse happens, standards were less और actual performance उसको out over पार कर देती है, means actual performance ज्यादा है, उस केस में need not to worry. लेकिन अगर मैं गुड्स प्रोड्यूस की बात करूं, आपने बोला है कि एक दिन में 100 यूनिट्स बनने चाहिए लेकिन 200 यूनिट बन रहे हैं, इट मींस कि कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। हड़बड़ाहट में हमारे वर्कर्स ने काम किया है, हमें इतनी स्पीड नहीं बढ़ानी कि हमारी क्वालिटी ही इंफीरियर हो जाए, या बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रही है बीच में। So this you need to worry, you have to instruct them accordingly. This is what we call comparison of actual performance, and hereby you have to give the reference of deviations. ठीक है, जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे अपनी डेविएशन की रेफरेंस देनी है। अब जैसे ही डेविएशंस आ गई, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप, एनालाइजिंग द डेविएशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालाइजिंग द डेविएशंस? फर्स्टली टेल मी द डेविएशंस। व्हेन AP, that is actual performance, is greater than SP, means standard performance. ठीक, so we call it positive deviations. मीन्स जितना आप चाहते थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा हो। बट इफ रिवर्स हैपेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, वी विल बी कॉलिंग इट नेगेटिव डेविएशन, देन यू नीड टू। ठीक, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, पॉजिटिव डेविएशन होने के बावजूद भी हो सकता है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ हो, इसलिए एक्चुअल परफॉर्मेंस बढ़ गई। हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि 100 यूनिट बने और 105 या 104 बन गया, नीड नॉट टू वरी। लेकिन अगर 150 बन गया है 100 के कंपैरिजन में, देन यू हैव टू रीथिंक कि यहाँ आपने स्टैंडर्ड तो नहीं कम फिक्स कर दिया था, आपने अपने वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया, वो तो बहुत ज्यादा यूनिट बना सकते हैं डेली, आपने उनका स्टैंडर्ड ही बहुत कम फिक्स किया, या उन्होंने हड़बड़ाहट में बनाए हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करी है, क्वालिटी को कंट्रोल में ही नहीं रखा। तो इन दैट केस यू नीड टू स्टडी। तो जब आप इन डेविएशंस को स्टडी करोगे तो हमारा फोर्थ स्टेप आ जाता है भाई, जिसे बोलते हैं एनालाइजिंग द डेविएशंस। स्टडी देम डीपली एंड सी वेयर बाय यू आर लैगिंग बिहाइंड, कहां पे आपकी डेफिशिएंसीज रह गई, कहां पे आपकी शॉर्ट कमिंग्स रह गई, दैट यू नीड टू स्टडी इन डिटेल सो दैट दीज मिस्टेक्स शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, वो दोबारा से रिपीट ना हो सेम तरह की मिस्टेक्स, उन्हें अवॉइड करने के लिए यू नीड टू स्टडी योर डेविएशंस डीपली। और इसी पॉइंट में हमारा दो अलग से क्वेश्चन आते हैं, और वो दो अलग से टॉपिक मेरे को आपको समझाने हैं, दैट इज सीपीसी। पहले उनके हाईलाइटिंग पॉइंट देख लेना, सीपीसी एंड देन वी कॉल एमबीई। डिटेल में बुक में एक एक पैराग्राफ दोनों का लिखा है, लेकिन क्या मीनिंग है इनका। सीपीसी मीन्स critical point control, MB means management by exception. So when you study your deviations, the company is having two techniques with it, or company's management is having two techniques with it. One is critical point control. What is the meaning of this? Need not to analyze everything, because whenever you try to control everything tightly, you will not be able to control anything. इसका मतलब ये, जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट यही निकलेगा, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर कंट्रोल रखो। लाइक आई विल गिव यू द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पोस्टेज एक्सपेंसेस 20% से बढ़ गए हैं, पोस्टेज पे कितना खर्चा होता है, पिछले साल का रिकॉर्ड है, पूरे साल में 1000 के आसपास होता है, मान लो वो 15% से बढ़ गया तो 150 ही बढ़ा होगा, आपका लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस ज्यादा हो गया होगा, तो कोई बात नहीं, 1150 हो गया इस साल। पर अगर आपका लेबर कॉस्ट 5% से भी बढ़ जाए, मींस आपने सैलरी बढ़ा दी, तो आपका सैलरी का खर्चा पिछले साल कितना था, 10 लाख था, उसका 5% बढ़ा, मींस 50,000 का आपको और ज्यादा बर्डन हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 2% से बढ़ गई, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पिछले साल 1 करोड़ थी, 2% से बढ़ने का मतलब है 2 लाख बढ़ी होगी, ठीक है, देन यू नीड टू वरी।
तो माइनर सी जो चीजें होती हैं उन्हें आप इग्नोर कर दो, उनके ऊपर टाइट कंट्रोल रखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू गिव योर टाइम टू द इंपॉर्टेंट एरियाज, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. मतलब ऐसे पॉइंट्स को आप इग्नोर नहीं करोगे जो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर सकते हैं. और इसका मीनिंग भी मोर और लेस सेम ही है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट को रूटीन के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना, मैनेजमेंट को सिर्फ एक्सेप्शनल केस में इंटरफेयर करना है. मींस मैनेजमेंट को बाकी सारी चीजें डिसेंट्रलाइज कर देनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ही सेंट्रलाइज कंट्रोल रखना है. दिस इज व्हाट वी कॉल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. डेली और रूटीन के मैटर्स अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दो. दे आर आल्सो बेस्ट इन हैंडलिंग देम बिकॉज यू योरसेल्फ अपॉइंटेड देम, हैव ट्रस्ट अपॉन देम. सारे काम खुद नहीं करेगी टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट रूटीन के मैटर्स अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देगी और सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी. दिस इज व्हाट लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यू कांट लीव ऑन अदर्स. That is a major department. You are getting me? Cost of production you can't leave on others. Even आप प्रोडक्शन मैनेजर को दे भी देते हो लेकिन फिर भी फॉलो अप लेते हैं, क्योंकि जब तक कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा या कॉस्ट जरूरत से ज्यादा लगेगी और प्रोडक्शन मैनेजर के मन में डर नहीं रहेगा कि मैनेजमेंट कैन एनी टाइम आस्क मी, तब तक आपका कंसर्न फ्लॉप होने के चांसेस हैं. So in order to avoid that situation, management should come forward only in exceptional cases. Surprisingly checking. जो मेन एरियाज हैं उन्हीं में वो क्या रखेगी, कंट्रोल रखेगी. So why he introduced these two topics under analyzing deviations, let me tell you. He says some deviations in performance can be expected in all the activities. Like 2 या 3% चांसेस हैं कि डिफेक्टिव मटेरियल बनना है, लेकिन अगर डिफेक्टिव मटेरियल 15% निकल रहा है, 20% निकल रहा है, इट मींस कि कहीं ना कोई लूप होल है ना. 2-3% तो आर एक्सेप्टेबल. कहता कुछ हद तक डेविएशंस एक्सेप्टेबल होती हैं, हम वी नेवर माइंड. लेकिन अगर वो डेविएशन जरूरत से ज्यादा और लिमिट को क्रॉस कर देती हैं तब हमारी मैनेजमेंट को नीड टू वरी. So then management should come forward and management should take corrective measures. Management should inquire from its lower levels so that the deviations should not be repeated or deviations should be cut down. In deviations को कम करने के लिए management should come forward. It is therefore important to determine the acceptable range of deviations. What is the meaning of acceptable range? टाटा बिरला के लिए 10% भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए नहीं मैटर करता, लेकिन एक सोल प्रोप्राइटर के लिए 1% भी कॉस्ट बढ़ जाए तो मैटर्स अ लॉट, because that person is performing its level of operation on a very small scale. उसके लिए 10 रुपए भी मैटर करते हैं, लेकिन टाटा बिरला के लिए हो सकता है 10 लाख भी मैटर ना करें. So this is what he wants to tell you. You have to decide your acceptable range of variations कि कहाँ तक you need not to worry. जैसे वो रेंज से बाहर आ जाएंगे आपके deviations, you should take the corrective measure. Deviations in the key areas of the business need to be attended. What is the meaning of key area? Key area means very important area like research and development. ठीक है, like your cost of production. Cost of production का बढ़ना हमेशा is a matter of concern. Why matter of concern? क्योंकि अगर cost of production बढ़ेगी तो आपको selling price भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन competitor ने तो selling price बढ़ाया ही नहीं, फिर आपका सामान तो बिकना ही. ठीक है ना? So this is a key area. Key areas should be attended more carefully. की एरियाज में जैसे ही कोई डेविएशंस आती हैं आपने उनको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है, हैंडल करना है. सो दिस ही वांटेड टू टेल यू विद द हेल्प ऑफ एनालाइजिंग द डेविएशंस. Yes, for that purpose, कहता in order to study these deviations, the management is having 2 techniques. One is CPC, I wrote it here, critical point control, and the second is what, MBE. अब पहली लाइन को वो उठाता है और इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन बनाता है. It is neither economical nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. What it means? कहता ना ही हमारे लिए पॉसिबल है और ना ही हमारे लिए इजी है, ना ही हमारे लिए इकोनॉमिकल. का मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली अफेयर. इट इज नीदर टू बी इकोनॉमिकल नॉर इट इज इजी टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग. कहता ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखो. आपको कई चीजों के लिए फ्रीडम देनी ही पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी ही पड़ेगी अपने लोअर लेवल्स को. So what he wanted to tell with the help of this. So that's why control should be on key result areas. KRAs. इसका मीनिंग वो बहुत बार पूछता है पेपर में. What do you mean by KRAs? That is key result areas. What it means? These are the areas which are critical to the success of an organization. ये वो areas हैं जिनके ऊपर मेरी organization की success डिपेंड करती है. अगर ये areas इग्नोर हो गए तो आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप हो सकती है. और इसमें एग्जांपल क्या है? आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट.
इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लेबर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना, ठीक है। इसमें आपका और एग्जाम्पल कौन सा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अच्छी एड तैयार करनी। दीज ऑल आर द की रिजल्ट एरिया, ठीक है। जो माइनर वाले डिपार्टमेंट है उन्हें छोड़ दीजिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के हवाले कर दीजिए, लेकिन की रिजल्ट एरियाज को आप कभी भी इग्नोर नहीं करोगे। इफ एनीथिंग गो रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट्स देन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, देन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विल बी अ फ्लॉप शो। अगर आप इन की रिजल्ट एरियाज को क्या कर देते हैं, इग्नोर। एग्जाम्पल मेरे वाली ही दी है, 5% लेबर कॉस्ट का बढ़ना और दूसरी तरफ 15% से पोस्टेज एक्सपेंसेस का बढ़ना, दोनों में से की रिजल्ट कौन सा है? उधर इंक्रीज ज्यादा हो रही है जबकि पोस्टेज एक्सपेंडिचर में, लेकिन लेबर कॉस्ट में तो 5% से इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट इज माय की रिजल्ट एरिया इन दैट केस? लेबर कॉस्ट। भाई वी हैव टू सी द लेबर कॉस्ट, ठीक है। लेबर कॉस्ट का इतने ज्यादा परसेंटेज से बढ़ना हमारे लिए की रिजल्ट एरिया है। वाई? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी मींस लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपको सेलिंग प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस बढ़ा के क्या आप अपना सामान पहले की तरह बेच पाओगे मार्केट में? नो, ठीक है। सो यू नीड टू वरी इन दैट केस, that is going to be the key result area for you. You have to handle it, you have to check it on priority basis. This is what we call critical point control. Critical here means very very important, which you can't ignore at all. आपको उन्हें फोकस करना ही पड़ेगा। अगर कहीं आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं then you will be suffering later. This is what we call CPC. Then we call the next point we have MBE, management by exception. What line he made it here for this? It depends upon the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. What it indicates? An attempt to control everything will result in controlling nothing. जब मैनेजमेंट हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो क्या करना चाहिए मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट को हर चीज के ऊपर चेक नहीं रखना, मैनेजमेंट को सिर्फ एक्सेप्शनल एरियाज पे ही चेक रखना है। बाकी सारे काम किनको करने को दे दो? अपने सबऑर्डिनेट्स को करने को बोल दो। दिस इज व्हाट वी कॉल MBE, management by exception. Management should come into scene only in exceptional cases, not in the routine matter. रूटीन मैटर में हमारी मैनेजमेंट कभी भी सामने नहीं आएगी, बाकी सारे काम वो अपने लोअर लेवल से करवाएगी, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कामों में वो इंटरफेयर करेगी। लाइक इफ द डेविएशंस आर विद इन परमिसिबल लिमिट, इसकी एग्जांपल उसने ये बनाई, इफ द डेविएशंस आर विद इन परमिसिबल लिमिट मैनेजमेंट नीड नॉट टू वरी। लाइक अगर आप चाहते थे कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी 1000 यूनिट बने विद इन 6 months, हाफ ईयरली परफॉर्मेंस, लेकिन आपकी बनी है, मैंने बोला कि 1000 यूनिट्स बने, आपकी परफॉर्मेंस हुई है 998 यूनिट, 2 यूनिट का हेरफेर हो सकता है भाई, कोई बात नहीं, नीड नॉट टू वरी। इवन 905 भी है, 995 भी है, नीड नॉट टू वरी, 5 यूनिट्स का भी हेरफेर हो सकता है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस 800 यूनिट है तो 200 इज अ वेरी बिग गैप ना। फॉर दैट पर्पस मैनेजमेंट शुड कम फॉरवर्ड, मैनेजमेंट शुड इंक्वायर, मैनेजमेंट को इंक्वायर करना पड़ेगा अपने लो लेवल से, अपनी टीम से कि व्हाई इट हैपेंड। दैट इज व्हाट वी कॉल MBE। हाँ, यस, उसने एक और एग्जांपल अच्छी दी है। For example, if the plans lay down 2% increase in the labor cost is an acceptable range, कि 2% हर साल सैलरी वगैरह बढ़ेगी, ठीक, लेकिन अगर सैलरी 2% से ज्यादा, मतलब लेबर कॉस्ट 2% से ज्यादा बढ़ती है, एक्सेप्टेबल रेंज जब हमने 2% रखी है, अगर उससे ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ती है, then management need to worry. Management will be asking from the middle level, from the low level, why there is an increase of 5%, why there is an increase of 7%, etc. So in that case, management will come into scene and management will inquire the reasons. Rest of the things we will discuss tomorrow.